Hello guys, welcome to the channel of TCP/IP. Today we are going to discuss about the VLSM and its numericals. So let's start VLSM. So before, let's say if you have the VLSM as a concept, we can say guys why there is a VLSM required. First of all, need to discuss why there is a requirement of VLSM. So take one by one. As we know that to save the wastage of IP address, we know guys with the subnetting and the classful IP addressing, there are lots of addresses are going to be waste because there was the fixed size of subnets. Okay, so there are so many of IP address got waste. So to overcome this problem also, it is going to be VLSM. Second, collapse of class B IP network address space. As we know guys that IP version 4 class B addresses are now almost have collapses nowadays. So again, we required to have a VLSM concept. Massive growth on internet routers, routing tables beyond the capacity of current hardware and the software. This is also because size of the network and the routers and the devices are going to be very large nowadays. So उसको route करने के लिए या उसके tables को beyond ये capacity के ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी size हमें छोटा करने के लिए ये भी काम में आएगा. Then there is a variable requirement of like sub departments in an organization. Let's say in college, in a new college, what we have number of faculties, number of students, number of admin sections, student section, etc. But here, if you go with the every sections of the college, the faculty and the student ratio will be something different. The faculty will be less number, student will be high number, admin section will be again low number, and placement section, etc., etc. So these are the different sections or departments are available in any particular organization. So in order to solve the requirement of that sub department, we required again variable length subnet mask. Then what is VLSM? So VLSM stand for variable length subnet mask. Where the subnet architecture use more than one mask in the same network. Meaning that it uses more than one mask in a various subnets of single class A, B, C of our networks. Here we can say in the VLSM we have a different subnet mask for the one network, because one network is divided into different subnets, so that subnets have different subnet masks. Earlier we have discussed about the FLSM, fixed length subnet masking. वहां पे कहीं ना कहीं एक ही सबनेट मास्क पूरे के पूरे सबनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या कि हर किसी सबनेट का अलग अलग सबनेट मास्क रहने वाला है. It is used to improve the subnet usability because it can be variable scale. It is also known as subnetting process for the subnet. Let's say in the figure number 1, if you go with the fixed net subnetworking, so here there are 1, 2, and 3 and 4 subnets are there. So if you go with this diagram, so subnet mask will be same. Whatever the value, let's say 2 to the power 2 will be 4 subnet there. So last value will be, let's say 128 plus 64, that is 192 value will be subnet mask. And here if you go with the second diagram, here is the variable subnetting. Here is the first subnet, second subnet, third and fourth. If you go with here, say this will be 128, this will be by adding 128, this will be 64 in size, this will be 32 in size, and this will be also 32 in size. But if you go in the first diagram, all are what 128, or let's say 64, 64. Subnet mask will be 128 plus bit, and here 64, 64, all having the 64 in size. So here, this is what the basic introduction, guys. So let's take the second slide where, let me stop this one. Okay, the second slide, let's consider one example so that we can understand this VLSM concept thoroughly. So first of all, here, let's consider an example, any organization diagram with a different requirement with the ID 192.160.1.0/27. This is what the slash notation is given. अभी यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले /27 given हुआ है. So here and there is a diagram, and diagram is what? In diagram there are 5 sub networks are there. So here first of all network A required 28 hosts, network B required 28 hosts, network C again required only 14 hosts, network D required 7 hosts, and E required only 2 hosts. So here we can see an organization having different requirements of the number of hosts. तो अगर यहाँ पर अगर हम फिक्स नेट सब नेटवर्किंग अगर मास्किंग करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बेच जाएंगे. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें VLSM कैसे यूज करना है. देखो, सबसे पहले
यहाँ पर आईडी गिवन है 27, तो 27 कहीं ना कहीं कंसेक्यूटिव हमारे पास वंस रहेंगे ऑन, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे नेटवर्क को, और बाकी के जो रिमेनिंग रहेंगे ये पोर्शन वो रिप्रेजेंट करेंगे होस्ट को। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस होस्ट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट भी हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ सबनेट भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट हमारे पास है, मान के चलो कि 5 सबनेट्स की, देयर आर सो लेट्स से 5 सबनेट्स। तो 5 सबनेट को हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 2 टू द पावर का रेशियो हमें फॉलो करना पड़ेगा, 2 टू द पावर 1, देन 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर 3। तो 1 को करते हैं तो यहाँ पे 2 सबनेट मिलेंगे, 2 टू द पावर 2 को करेंगे तो यहाँ पे 4 सबनेट मिलेंगे, 2 टू द पावर 3 को करेंगे तो 8 सबनेट मिलेंगे। तो 5 का कोई रेशियो है ही नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं बेस्ट सुटेबल आंसर हमारे पास या कॉम्बिनेशन है वो है 2 टू द पावर 3 वाला, जिसमें 8 सबनेट मिलेंगे। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है 5 ही सबनेट की है। एनीवे सबनेट्स हमारे ज्यादा बन रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो रही है, हमें तो उसको चूज करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल सबनेट मास। तो सबनेट मास यहाँ पर देखिए, सबनेट मास यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी नोटेशन हमने किया है। तो एज पर द CLI या स्लैश नोटेशन और CIDR नोटेशन, हमारे पास 27 मतलब ये 8 8 प्लस 8 प्लस ये 3, 24 प्लस 3 27, यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव ऑन हमने रख दिया। उसके बाद रिमेनिंग पोस्ट ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क को और सबनेट्स को, और बाकी के जो 5 रिमेनिंग है उसको करेंगे होस्ट को। और डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं, सो दैट विल बी 255.255.254, दिस विल बी द सबनेट मास, 224 अप टू दिस सबनेट मास। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने आएंगे, सब नेटवर्क्स 2 टू द पावर 3, 8 सबनेट बनेंगे, 8 सबनेट बनेंगे। हमारे पास 5 ही है, लेकिन हमने यहाँ पे 8 बना दिए क्योंकि वही बेस्ट रेशियो है। उसके बाद एक सबनेट में कितने होस्ट रहेंगे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिमेनिंग होस्ट के बिट कितने हैं, जो ऑफ है, जो कि है 5। सो 2 टू द पावर 5 माइनस 2। अब ये -2 हमने क्यों किया है, एक तो सबसे पहले जाएगा नेटवर्क आईडी को और लास्ट वाला जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी को। तो लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट और पहला वाला है नेटवर्क को जाएंगे। सो दिस विल बी 32 माइनस 2, सो 30 आईपी एड्रेस विल बी गेटिंग वैलिड आईपी एड्रेस। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम हम 30 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक में। लेकिन यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट देखे 28 की दिख रही है, 7 14 2 ऐसी दिख रही है। So now, so in every sub networks 30 valid IP addresses will get and will be assigned, but requirement of organization is varying, मतलब requirement हमारी अलग अलग है। Hence creating the fixed size subnet mask will lead to the wastage of IP address, wastage of IP address. Then but the question comes, how to handle such situation, Now let's check how to handle this situation. Now here first let's check what are the drawbacks. Of fixed length subnet masking. Let's say और यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी 5 नेटवर्क पे, हमने नेटवर्क ABCD यहाँ पर 5 नेटवर्क डाल दिए। हर किसी के अगर हमने सबनेटिंग कर रहे हैं तो सबनेटिंग में देखो, सबसे पहले हमने 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट किया, मतलब 8 सबनेट आए। यहाँ पर 8 सबनेट बन गए, 1 से लेकर 8 तक सबनेट बना दिए। 8 सबनेट बनने के बाद अभी उनकी रेंज क्या रहेंगी, तो रेंज हमारी सबनेट रेंज की रहेंगी 192.168.1.0 से लेकर कहीं ना कहीं 30, और मतलब क्या, एक एक ब्लॉक में हमारे पास 32 का साइज आएगा। 32 का नंबर ऑफ होस्ट की साइज आती थी, उसमें से हमने 2 को माइनस करना है, तो इसमें 30 वैलिड आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, 30 वैलिड आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। और उसमें उस नेटवर्क में, नेटवर्क ए में बात करते हैं तो हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है, 28 की रिक्वायरमेंट है। 28 की अगर रिक्वायरमेंट हमें 30 अगर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 30 माइनस 28 अगर करते हैं तो 2 आईपी एड्रेस भेज जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिक्स साइज की, ओके। दूसरी बात, नेटवर्क बी में अगर जाएंगे तो नेटवर्क बी का साइज भी वही रहेगा, मतलब 32 एड्रेसेस का। तो 32 माइनस 2, ये 30 वैलिड मिल रहे हैं, हर किसी में 30 वैलिड मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है 28 की, तो यहाँ पर भी 2 वेज जाएंगे। ऐसे ही बात करते हैं क्लास सी की, क्लास सी को रिक्वायरमेंट कितनी है, 14 आईपी एड्रेसेस की, तो 30 माइनस 14 16 वेस्ट जाएंगे, 16 आईपी एड्रेस यहाँ पे वेस्ट जा रहे हैं। अगर बात करते हैं क्लास डी की, यहाँ पे 7 ही आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, 7 आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, तो 30 माइनस 7 23 आईपी एड्रेस वेस्ट जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं क्लास ई की, यहाँ पर 2 ही आईपी एड्रेस लग रहे हैं, और उसमें 30 माइनस 2 कर दे तो 28 आईपी एड्रेस वेस्ट जा रहे हैं। और उसके बाद के जो सबनेट्स है, मतलब सबनेट 6, 7 और 8, यहाँ पे कोई भी अलोकेशन या कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एज इट इज ये 32 32 32 बाकी सारे के सारे वेज जाएंगे। मतलब उसमें से 2 2 माइनस करते हैं तो 30 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 90 एड्रेस आएंगे। ये तो अनयूज्ड है, मतलब किसी ने यूज भी नहीं किया।
ओके, उसके बाद ये पहले वाले जो हमारे पास है, इसमें से कहीं ना कहीं ये इतने एड्रेसेस वेस्ट जा रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास 161 एड्रेस अनयूज्ड है या वेस्ट जा रहे हैं। 161, दिस इज वेरी ह्यूज नंबर। अगर हम फिक्स सबनेटिंग करते हैं तो, और यहाँ पे सभी नेटवर्क्स को एक ही सबनेट मास्क है, देखो 255.25.255.224 224, यही हमारा सबनेट मास्क है। सभी सबनेट्स के लिए एक ही सबनेट मास्क गिवन है। अब इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस को सेव करना है। तो इसको कैसे कर पाएंगे? लेट्स टेक सेकंड स्लाइड एंड गो विद द केस बाय केस। सो हियर एज वी नो गाइज कि बट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, सभी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है हर एक नेटवर्क की। यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं पहले। नेटवर्क ए में 28 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो इसके हिसाब से CIDR नोटेशन 27 बनेगा। ये कैसे बनेगा हम उसके नेक्स्ट स्लाइड में वर्कआउट करने वाले हैं। उसका सबनेट मास्क देखो 255.255.254। उसके बाद क्लास बी का भी 28 की रिक्वायरमेंट है, तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम है। और हमने स्टेटमेंट बोला था कि VLSM में हर किसी का सबनेट मास्क अलग अलग होता है। क्लास सी में अगर जाते हैं तो 14 ही होस्ट रिक्वायर्ड है। 14 होस्ट रिक्वायर्ड है मतलब क्या, यहाँ पर मैक्सिमम 2 टू द पावर, अगर हम लेट्स से 4 करते हैं तो इट विल बी 16। यहाँ पे होस्ट बिट का इतना रहेगा तो 28 बिट का CIDR नोटेशन बनेगा, यहाँ तक ये सबनेट मास्क बनेगा। क्लास डी के लिए जाएंगे तो 7 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 28 CIDR नोटेशन बनेगा, और सबनेट मास्क 240 बनेगा, दोनों के लिए सेम है। उसके बाद जो है वेरिएशन हमारे पास दो ही आईपी एड्रेस लग रहे हैं, जिसका CIDR नोटेशन 30 तक सेट करते हैं, बिकॉज 2 टू द पावर ओनली 2 अगर करेंगे तो 4 वैलिड आईपी एड्रेस मिलेंगे। 4 में से 2 माइनस भी करते हैं तो 2 आईपी एड्रेस हमारे पास एक्चुअल वैलिड आईपी एड्रेस मिलने वाले हैं। ओके, इसके हिसाब से इसका सबनेट मास्क अलग, हर किसी के सबनेट मास्क अलग अलग है। ओके, अब ये अगर सबनेट मास्क अलग अलग है तो कैन वी डू बेटर देन दिस? यस, VLSM is the option where the loss will be saved. Loss will be saved. What loss? The IP address loss will be saved. So let's solve this example with the cases. Now, the very first, let's say here, case number 1. Our first requirement is of 28. हमारे पहले नेटवर्क A में सिर्फ 28 ही बिट लग रहे हैं, 28 ही होस्ट लग रहे हैं। An appropriate subnet mask for calculating 28 hosts will be /27. ये /27 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पोर्शन करेंगे तो 2 टू द पावर 3 करेंगे तो 8 सबनेट्स आएंगे, और रिमेनिंग होस्ट हमारे पास कितने हैं? 5। मतलब यहाँ पे होस्ट का पोर्शन है 5 और सबनेट का पोर्शन है 3। इसको स्प्लिट करते तो 1 1 1 यहाँ पे ऑन रहेंगे, और 5 बिट हमारे कहीं ना कहीं ऑफ रहेंगे। 5 बिट क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। उसके हिसाब से हमने अभी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो 27 कंसेक्यूटिव हमने ऑन कर दिए 1 बिट, उसके बाद 5 जो है ये ऑफ कर दिए, होस्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके हिसाब से सबनेट मास्क निकाले 255.255.255.224/27। अभी हम करते हैं कि हर एक इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं 32 आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं। देखो तो हमने सबनेट बना दिए। कैसे सबनेट बना दिए? ये 3 जो ऑन है, ये 3 जो ऑन है उसके हिसाब से हमने 2 टू द पावर 3 कर दिए। इसका आंसर आया 8। तो 8 सबनेट बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा अप टू 8 ये सबनेट बन गए। और 2 टू द पावर 5 क्यों 5 कर रहे हैं हम? क्योंकि ये हमारे पास होस्ट है। इसके हिसाब से कितना आएगा? 32 साइज आएगा हमारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक का। तो 32 आईपी एड्रेसेस एक ब्लॉक में रह सकते हैं। तो इसमें देखो 32 में से 2 माइनस कर लेंगे। यहाँ पे देखो 0 से लेकर 1.31 तक हमारा पहला ब्लॉक है। उसके बाद दूसरे ब्लॉक में हमारे पास भी फिर से 32 आईपी एड्रेसेस है, तीसरे में भी 32 आईपी एड्रेसेस है। ऐसे करते करते 8 सबनेट तक 32 आईपी एड्रेस है। लेकिन 32 की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है? 28 की। तो 28 की रिक्वायरमेंट तो मान के चलो अभी यहाँ पे 32 32 माइनस 2 कर देंगे तो 30 आईपी एड्रेस मिल जाएंगे। तो 30 आईपी एड्रेस मिलने के बाद हमें अभी देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट कितने कितने नेटवर्क की है, तो उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? तो सबसे पहले देखना है। तो हियर 8 डिफरेंट सबनेट्स क्रिएटेड, हमने डिस्कस कर लिया। टू सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड नेटवर्क ए और नेटवर्क बी, देखो नेटवर्क ए और नेटवर्क बी की रिक्वायरमेंट जो है वो 28 होस्ट की है। कितने कितने होस्ट की है? 28। तो ये 28 की होस्ट की रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? सबनेट 1 नेटवर्क ए को दे दिया, सबनेट 2 नेटवर्क बी को दे दिया। यहाँ पर कितना भी यहाँ पर रहेगा 28 माइनस 30 करेंगे तो 2 आईपी एड्रेस यहाँ पर और 2 आईपी एड्रेस यहाँ पर वेस्ट जाएंगे, चलेगा। लेकिन 2 ही मिनिमम एड्रेस जा रहे हैं। बट रेस्ट ऑफ द सबनेट मतलब क्या? सबनेट 3 से लेकर सबनेट 8 तक ये अनयूज्ड है। सबनेट 3 से लेकर सबनेट 8 तक क्या है? अनयूज्ड है। मतलब यहाँ पे
हमें कोई भी अलोकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। क्या होता था अगर हम एक नेटवर्क सी को यहाँ पर अगर देते थे, तो 14 अगर होस्ट की रिक्वायरमेंट है तो 30 माइनस 14 16 आईपी एड्रेस वेस्ट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो बचा वाला है अनयूज पोर्शन है, इसको फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये कैसे, ये यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने दो ही सबनेट्स हमको यहाँ पर यूटिलाइज कर दिए, क्लास ए और क्लास बी को, यहाँ पर हमने ये दोनों को दे दिए। ओके, यहाँ पर देखो अभी नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कैसी है उसको एनालाइज कर लेते हैं केस 2 में। नाउ आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ 14 एड्रेसेस, 14 एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। सो एन अप्रोप्रिएट सबनेट मस्ट कैलकुलेट द 14 होस्ट इज व्हाट 28 बिट ऑन करना है। ओके, देन एंड आवर नेक्स्ट अनयूज सबनेट फ्रॉम व्हाट 192.160.1.64 से हमारा अनयूज था। So by applying this /28, we'll get 2 to the power 4, 16 host, 16 subnet with the IP at 16 IP address in each। मतलब 16 सबनेट्स मिलेंगे और 16 सबनेट में 16 होस्ट आईपी एड्रेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो अपने सबनेट 1 2 3 से लेकर 16 सबनेट बना दिए। किस रेंज के बाद, इस पर्टिकुलर 192.168.1.64 के बाद, क्योंकि इसके पहले जो हमारे पास 64 जो एड्रेसेस है वो ऑलरेडी यूज्ड हुए, मतलब सबनेट बना चुके, उसको यूज कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर अभी ऐसे करते हैं तो यहाँ पर 16 आईपी एड्रेस मिल रहे हैं। बस 16 आईपी एड्रेस मिल रहे तो हमें रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास है क्लास सी की, 14 आईपी एड्रेस की। क्या हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक को असाइन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम 16 माइनस 14 अगर करते हैं तो 2 आईपी एड्रेस हमारे पास जाएंगे। यहाँ पे 16 में से देखो एक पहला और लास्ट वाला तो कहीं ना कहीं उस सबनेट और ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो जाएगा। यहाँ पर here 16 different subnets are created and then can it satisfy the request of network D and network C। यहाँ पर देखो नेटवर्क सी और डी की रिक्वायरमेंट हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 14 और 7 यूज होने वाले हैं। 7 के लिए हम इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई वेरिएशन नहीं बन रहा है, वही बेस्ट सुटेबल वेरिएशन है। तो सबनेट 1 यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएटेड सबनेट 1, मतलब उसके हिसाब से सबनेट 1 2 यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर सबनेट ये जो 2 है वो 4th आएगा। ये दोनों हम कहीं ना कहीं नेटवर्क सी और नेटवर्क बी को दे सकते हैं। ओके, देन बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट 14 होस्ट और 7 होस्ट की। ओके, ये 14 देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 4 जो किया 16 के हिसाब से अगर 2 टू द पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा जो ऑलरेडी वेस्ट जाएंगे। 2 टू द पावर 3 करेंगे तो ओनली 8 होस्ट आएंगे। तो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन जो है 2 टू द पावर 4 का ही है, तो 16 होस्ट का ही हम बना सकते हैं। 16 यहाँ पर 16 सबनेट ही रहने वाले। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टिल सेकंड सबनेट, इन सेकंड सबनेट मतलब ये जो सेकंड सबनेट है, मेनी ऑफ एड्रेसेस आर वेस्ट एंड सबनेट ब्लॉक 3 टू 16, 3 से लेकर 16 तक बाकी के पूरे हमारे पास जो सबनेट्स है वो अनयूज्ड है, फिलहाल अनयूज्ड है। हम अगर ये 2 होस्ट को देंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे एड्रेसेस भेज जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, और इसको बाइफिकेट करने की कोशिश करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इतने सारे सबनेट बनाए 16 सबनेट, तो उसको और सबनेट बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके हिसाब से देखो और क्या होता है कि हमने अब तक क्लास ए बी सी डी को सेटिस्फाई कर दिया। अभी हमारी बारी है लास्ट क्लास को, लास्ट नेटवर्क को सेटिस्फाई करने की, उसका नाम है क्लास ई। उसको सेटिस्फाई करते हैं। नाउ आवर रिक्वायरमेंट इज ऑफ ओनली 2 होस्ट एन अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर 2 होस्ट विल बी /30। इतने सारे बिट्स को हमें ऑन रखना पड़ेगा ऑन आवर, एंड आवर नेक्स्ट अनयूज सबनेट इज व्हाट 192.160.1.96 से लेकर अनयूज था। तो बाय अप्लाइंग दिस एड्रेस will get 2 to the power 6 64 सबनेट, और 64 सबनेट बनेंगे छोटे छोटे, और हर एक 64 सबनेट में कहीं ना कहीं 4 आईपी एड्रेसेस आएंगे, 4 आईपी एड्रेसेस और इसका सबनेट मास्क जो बनेगा 255.255.255.252। देखो यहाँ पर सबनेट मास्क अलग है, हर किसी का सबनेट मास्क अलग है। यहाँ पर हमसे 64 सबनेट बन गए, ये पहला दूसरा ऐसे ही 64 तक। अभी रिक्वायरमेंट चेक करना है तो ए बी सी डी यहाँ तक ये सेटिस्फाई हो गए हैं, इसको नहीं करना है। हमारी रिक्वायरमेंट 2 होस्ट की, 2 होस्ट की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 4 एड्रेस हमारे पास मिल रहे हैं। 4 माइनस अगर 2 भी करते हैं, यहाँ पे 2 आईपी एड्रेस वैलिड मिलने वाले और हमारी रिक्वायरमेंट भी 2 ही, तो कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर सबनेट को यूज कर सकते हैं। ओके, उसकी रेंज क्या रहेंगी 192.168.1.96 से लेकर 1.99 तक। यहाँ पर हम कर सकते हैं उसको यूं कर, बट यहाँ पर देखो, so here 64 subnets are created as I told you guys, and here it will be it satisfied the request of network key because it required only 2 hosts. Still subnet 2 to 64 will be unused,
यहाँ से सबनेट 2 से लेकर 64 सबनेट तक कहीं भी अभी भी अनयूज रहेगा, चलेगा। लेकिन लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखो कंफ्यूजन में क्या बता रहा हूँ, बट नो इशू, वी हैव सेव्ड मेनी आईपी एड्रेसेस एज कंपेयर टू द फिक्स सबनेटिंग। कैसे कैसे सेव किया देखो, मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर वीएलएसएम सबसे पहले चार्ट पे अगर हम गए थे तो वहां पे 71 प्लस 90, यहाँ पे मतलब 161 एड्रेसेस जो थे अनयूज थे और वेस्ट थे दोनों मिला के, पहले के केस में जो पहले स्लाइड में आपको दिखाया। उसके बाद और वो किसी को भी मतलब वो यूज नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर बट इन वीएलएसएम की बात करेंगे तो जो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया उसमें 11 एड्रेसेस वेस्ट जा रहे हैं और 155 अनयूज्ड है। यहाँ पे देखो 11 वेस्ट और इसमें कंपेयर करेंगे तो 71 वेस्ट। ये 11 कैसे आए, यहाँ पर 2 एड्रेस वेस्ट थे, यहाँ पर 2 एड्रेस वेस्ट थे, यहाँ पर कोई भी नहीं था, यहाँ पर मान के चलो 7-8 वेस्ट थे, यहाँ पर एक भी नहीं वेस्ट था। ये 11 हो गया, तो 2 2 4 हो गए। 4 होने के बाद यहाँ पर एक भी नहीं, उसके बाद यहाँ पर 7 वेस्ट थे, मतलब ये आकरा एड्रेस आ गए। ओके, ये और उसके बाद 155 मतलब ये सबनेट्स यहाँ से लेकर 64 तक कहीं ना कहीं अनयूज है। मतलब कोई भी अगर एक वेरिएबल रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे 2 आईपी एड्रेस चाहिए, 2 आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये अभी भी यूज हो सकते हैं, फर्दर इट कैन बी यूज। तो यहाँ पर देखो इतने सारे आईपी एड्रेस हमने सेव किए, 71 वेस्ट हो रहे थे और यहाँ पे सिर्फ 11 ही वेस्ट हो रहे हैं। 71 के बारे में आपको फिर से दिखाता हूँ 71 कैसे आए। सबसे पहले स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो लेट्स गो टू फर्स्ट स्लाइड गाइस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि कहाँ से वेस्ट गए। ये देखो यहाँ पर हमने एक बात की थी आईपी एड्रेसेस की, ये बात की थी, ये बात की थी। यहाँ पे 7 इसको मिला के 71 हो जाते हैं और ये है हमारे पास 90, तो 90 और 71 61 का एड्रेस मतलब हमने वेस्ट कर दिया। अगर इसी को यहाँ पर इतने सारे वेस्ट जा रहे तो हमने आगे आगे बढ़ते गए, सब हर किसी के इसमें हमको सिर्फ कुछ ही एड्रेसेस वेस्ट जा रहे हैं, जो कि है यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे 2 2 4 जा रहे हैं। इसके बाद 7 जा रहे थे, उसके बाद कुछ भी नहीं जा रहा था। क्लास नेटवर्क बी में 7 एड्रेस वेस्ट जा रहे थे, इसको मिला के कहीं ना कहीं ओनली 11 एड्रेस और इसके बाद जो 155 जो है अनयूज है वो यूज हो सकते हैं। तो ये हो गया गाइस वीएलएसएम। तो वीएलएसएम में 2 चीजें बहुत ही खास है। सबसे पहले कि हमारे सबनेट का साइज अलग अलग रहेगा, and second will be what every subnet having a different subnet path, which leads to the save the number of IP addresses guys, and this is what very good concept and very effective concept to save the IP addresses. So हमने यहाँ पर thoroughly देखा है कि VLSM क्यों required है, क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के फॉर्म में देखी है। थैंक यू सो मच।